आज हमारे पास okay, thank you दोस्तों. Team members, you are team members. Welcome to this today's internal training. And Arnab has just asked me to take over. I'm just checking who was the moderator today. It was. You are the moderator. Oh, I'm the moderator. Okay, sorry, I missed it. So, team, today we have got this lovely opportunity to experience Sundarban. Obviously not physically, but definitely Shima, our presenter for today, would be helping us to experiencing it using her experiences, I'm sure. टेक्निक्स मेथड जो भी उन्होंने लाए होंगे प्रेजेंटेशन में लाए होंगे या स्टोरीज के थ्रू लाए होंगे. तो क्या हम सब सुंदरबन की तैयारी कर सकते हैं? कैन वी ऑल गेट रेडी फॉर सुंदरबन्स? ओके, सो आई थिंक वी आर ऑल रेडी. तो क्यों ना शिवा को ही आज का ये मौका मिले कि शिमा आप ही प्रणाम मंत्र के साथ स्टार्ट करिए और जहाँ जहाँ जो भी जरूरत पड़ेगी वी विल चिप इन. डोंट वरी, इट्स ओके. ठीक है शिमा, यू ऑल रेडी? Yes. थैंक यू. All yours. Okay, so dear team, we'll start with our Pranam mantra. Om Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraye Sachit Sukha Sarupaya Samine Tapaharine. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat. Okay, so thank you, Taman sir, and namaskar to all of you. Once again, welcome to all of you. So today I would like to take you on a journey to a very unique and special or beautiful or breathtaking region on earth. The name is Sundarban. So today mostly I'll discuss on that lifestyle of Sundarban's people, the culture and beauty in the sense like in nature and all that Royal Bengal tiger. And also the survival, like how these are all the people that face different kind of challenges and how they survive, and the future in the sense like as a young generation, as a young girl from Sundarban, how I would like to see the Sundarban in future. So these are all the things I would love to discuss with all of you. And also, maybe today's session it will be like top down kind of. I didn't prepare any kind of questions that I will ask. So I'd love to hear from you, your own point of view, your own, like experiences. So maybe that will help me to grow. And also, like I want to do something, I have so much of dreams that I want to do. So maybe your point of view, your experiences and your opinion will help me to discover all those fields that is till now that is unknown for me. So okay, so first of all we'll see the map where this breathtaking region is located. So you can see. तो ये जो सुंदरबन है, it's like roughly 10,000 kilometers across India and Bangladesh. So in India, West Bengal, we have two districts, South 24 Parganas and North 24 Parganas. In Bangladesh, we have three districts. It's Khulna, Bagherhat, and one more district we have. I think the name is Satkheira. The three districts we have in Bangladesh and two in India, West Bengal. So, and also you can see the core area, the buffer area, the water bodies and all the Iceland. 102, like 102 island we have in Sundarban, and 54 their populations, that insan wo log sare rehte hain, and the 48 island there are the wildlife animal and the forest, those are the they live. And okay, so we can go next slide. Yeah, Roshan sir. ये ग्रीन कलर जो है क्या वो ह्यूमन सेटलमेंट का है या फिर कोर जोन yes, का है? ह्यूमन जहाँ पे इंसान सारे रहते हैं. मैं भी पूरा ये नॉर्थ में है कोर जोन. Yes sir.
कोर जोन जो है वो Yes. कोर एरिया नॉर्थ में है। Yes, yes. थोड़ा लोकेट नहीं हो पा रहा था मुझे, वो कलर ही नहीं दिख रहा है। Yes, सुलना Arnav. जी, green area represents the plantation ना? सर ये जो साउथ 24 परगनास के साइड जो ग्रीन एरिया जो सारे है ना, ये सारे मतलब ह्यूमन हैबिटेशन से जहाँ रहते हैं, लाइक यू नो साइड में इसके डिटेल्स मेंशन्ड है कि जो कलर Legend. जो कलर और उसकी कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स राइट हैंड साइड में आप सभी लोग जूम करके देख सकते हैं। अच्छा, क्या ये ऐसा लगता है ये ज्यादा जो वो क्या इसमें चला गया बांग्लादेश में इधर, क्योंकि वो जो कोर एरिया है वो थोड़ा बांग्लादेश में दिखा रहा है, मुझे इधर नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा बांग्लादेश में है। इवन आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट सर, ये समझ नहीं, I think 60 to 70% सुंदरबन बांग्लादेश में है। हाँ, क्योंकि वो 3 डिस्ट्रिक्ट लेके बैठा हुआ है, तो Arnav sir, Yes, can I share something? नहीं, सीमा अर्नव सर, से पूछो। ये अच्छा, ये बांग्लादेश में डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है सर जी, बांग्लादेश के डेल्टा क्षेत्र में भी है। ओके। जी जी ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट में जाते हैं। So here I thought like I'll discuss about the name, you know, Sundarban, like the name from where it's originated. The Sundarban, it's the name, it's originated from the name of the Sundari tree, the, you know, hairy tiara forms. So Sundari tree, it's like Sundar, and Sundarban, like Sundar, like, you know, beautiful forest we call. So from there it came Sundari, like Sundarban, from Sundari tree. So it's mostly like, you know, in Sundarban, so mostly that Sundari tree you will find like most. So that's the originated of Sundarban, the name. Shall we go next? So next. If we talk about the population, so approx 4.5 to 5 million population, or that is in Indian Sundarban, and approx 3.5 million that is in Bangladeshi Sundarban. So it's approx like 45 lakhs to 50 lakhs, and in Bangladesh there are 35 to 40 lakhs. This is the populations, you know, right now. So here I keep this slide Sundarban, you know, the beauty of Sundarbans, like जिसके लिए ये सुंदरबन जो है ये इतना फेमस है, इतना जाना जाते हैं, तो ये सारे चीज के लिए that world largest mangrove forest है. Then जो mighty rivers है, different kind of, and most important जो है वो है रॉयल बंगाल टाइगर. वो आप सभी ने सुना होगा कहीं ना कहीं, आप सभी. यस दिलीप सर. ये मैंग्रोव क्या होता है मैम? सीरियसली इसका क्लियर आंसर मेरे पास भी नहीं है. आई वुड लव टू आस्क अर्नब सर. रोशन जी बताएंगे। रोशन जी, अच्छा देखो, हमारी जानकारी में ऐसा है कि ये जो एक अलग प्रकार की ट्री होती है जो ज्यादा वाटर एरिया में पाई जाती है, क्योंकि क्या है ना, वहाँ पे दलदल होता है, बारिश होता है, तो ये पानी, ये ट्री को क्या सस्टेन करने के लिए कभी लैंड में, कभी दलदल में, चिखल, कभी पानी, पूरा पानी होता है, पानी बढ़ता है. तो ये देखो फोटो में जो आप रूट्स देख रहे हैं ना ये ट्री की, ये सब जगह सस्टेन करते हैं. जनरल ट्री जो है वो हवा लगने से है ना. नहीं, वो गलत जाता है. मैंग्रोव होता है नमक वाला पानी, खारा पानी. मैंग्रोव एक ऐसा, वन सेकंड मैम, इन क्लास हेल्प पाना, 1 सेकंड.
समंदर आ रहा है ना और नदी आ रही है, वहां पे एक स्पेशल टाइप के जो वेजिटेशन, जो भी जंगल है, हाँ, उन जंगलों के पेड़ वहां, जैसे दिलीप, डेजर्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं वो इतने समय में अडेप्ट कर गए और वो अलग बन गए, कांटे आ गए, पत्ते झड़ गए अपने पानी को बचाने के लिए, है ना। मैंग्रोव ने भी नॉर्मल पेड़ इस तरीके से अडेप्ट हो गए। ये जो आप जड़ें देख रहे हैं, वो जड़ें पानी से ऊपर होता है, उनका सिस्टम अलग होता है, पूरे कैपिलरी एक्शन, पत्ते अलग होते हैं। मैं जब सुंदरवन गया था कुछ 3-4 साल पहले, मैं एक सुंदरी पेड़ खरीद के लाया था, अभी भी छत पे है। तो पानी में, पर वो खारे पानी में भी जिंदा रह सकता है और मीठे पानी में भी। कुछ पेड़ होते हैं खाली खारी में रहते हैं, वो मीठा आएगा तो मर जाता है। और तो वही मैंग्रोव एक ऐसा, केरला के बैकवाटर्स है ना, वहां पे भी मैंग्रोव पाए जाते हैं। वानू मैम के फोटोज देख रहे होंगे, वो जितने पेड़ हैं वो सारे मैंग्रोव है। मीठा और खारा दोनों को वो आराम से निगल सकता है। ओके, थैंक यू सर। तो इसकी जड़ें बहुत लंबी लंबी होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसकी जड़ें इतनी लंबी लंबी होती हैं, फिर भी ये टिके रहते हैं। और आप लोग जब ये फाइंड आउट करेंगे मैनग्रोव ग्रुप, इसके नेम को आप फाइंड आउट करेंगे, इंग्लिश नेम इसका मैनग्रोव कैसे पड़ा, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट आएगा सामने। ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you for sharing your view. Okay. So यही है जो सारे एक सुंदरबन को और भी ब्यूटीफुल करते हैं, और भी इसके वजह से बाहर के इंसान जानते हैं। तो मैं यही पे थोड़ा बात करना चाहती हूँ रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, इतना फेमस है, जिसके लिए सुंदरबन फॉरेस्ट इतना जानते हैं सारे लोग। रॉयल बंगाल टाइगर इट्स आल्सो नोन एज लाइक द घोस्ट ऑफ मैनग्रोव्स, then also different kind of dolphins, crocodiles, and there are multiple birds that we can find. The most famous, that name is that brown oiled kingfisher. You can see in the pictures also. And also it's famous for that nature lovers and photographers. So every year approx, yeah, kind of so. फोटो से बात आई, मेरा डीपी भी सुंदरवन का है, अभी ये जो दिख रहा है। ओ अच्छा, हाँ हाँ हाँ। या ओके, बहुत अच्छा है सब। अनुश्री, यस प्लीज। मेरे क्वेश्चन है कि जब क्लाइमेट चेंज होती है तब सुंदरबन में क्या प्रभाव आते हैं? वो सारे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को होल्ड पे रखिए। आते हैं स्लाइड में। ओके, या चलो नेक्स्ट में जाते हैं। हेमंत सर। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या यहाँ ट्रैवल करने के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है अंदर जाने के लिए? नहीं, आपको जाना है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं लेकर जाऊंगी। डेफिनेटली। ओके, और कौन है? एक छोटा सा हेमंत के लिए, वो जो ट्रैवल एजेंट्स बोट पे, हाउस बोट्स पे लेके जाते हैं, पर वो एक उनका एक रास्ता बना होता है। अगर थोड़ा अंदर जाना है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती, क्योंकि वहां पे खतरा होता है, पब्लिक को ऐसे नहीं जाने देते। बट सीमा से ये पूछना है, लोकल लोग तो, टूरिस्ट नहीं जा सकते, लोकल लोग तो उधर के हैं, है ना? सारी जगह चले जाते हैं, ऐसे कुछ परमिशन नहीं लेना पड़ता है सर। जो हम बोट में जा रहे तो वहां बोल रहे वहां नहीं जा सकते, गवर्नमेंट परमिशन लगेगा। ऐसा ही होता है, मतलब अगर थोड़ा जान पहचान का होता है ना। वही ऐसा वाला। यस, केमिस्ट्री। और कौन कौन है मुझे देखना है। यस हम कह रहे थे, देखो कोर एरिया जो है ना, टाइगर रिजर्व का पर्पस ये है कि कोर एरियाज में सिर्फ टाइगर रहेंगे, वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट
टाइगर या फिर जो बाकी एनिमल्स है वो रह सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड नहीं है। तो अगर आपको कोर एरिया में एंट्री करनी है तो परमिशन लेनी पड़ती है। और मैप में तो नहीं दिखा तो हमें वो फाइंड करना होगा कि कोर एरिया कहाँ पे है। दूसरा, बफर एरिया मतलब जहाँ पे मैन और मतलब ह्यूमन और एनिमल साथ में रह सकते हैं। वहाँ कभी काफी बार कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बफर एरिया में। और आई फिर थिंक यस, बफर एरिया उसको बोलते हैं ना जहाँ पे मतलब वो प्रोटेक्शन के लिए लाइक वाइल्ड एनिमल और पॉपुलेशन को अलग करने के लिए जो प्रोटेक्शन एरिया होते हैं, आई थिंक। यस वो कुछ बेल्ट होता है बफर जोन, कोर के साइड में बफर होता है और बफर के बाद फिर वहाँ पे अपना हमारा बाकी जैसे ह्यूमन सेटलमेंट होता है वहाँ कोई परमिशन नहीं होता है। बफर में भी परमिशन है लेकिन कोर में परमिशन चाहिए। ओके बफर का पर्पज है कि लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन, बफर में थोड़ा लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन होते हैं और कोर में कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज पे। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट में जाते हैं। अब जो प्रेजेंटर है वही तो ये कर रहा है, हैंड रेज कर रखा है, आप उससे बात पूछिए क्वेश्चन सौरभ जी से। सौरभ एंड तनुश्री। सौरभ सर प्लीज। मे बी आई वाज रॉन्ग, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना सुंदरवन? यस सर, यस सर, बायोस्फीयर यस सर। the one of the 18 biosphere of the world. ओके थैंक यू हरिओम सर, आई एम थैंक यू। तनुश्री, वहाँ का लोगों का मेन मतलब जीविका क्या है? आप बहुत आगे आगे सोच रहे हो, आते हैं बाद में, ठीक है स्लाइड है। सॉरी अभी आंसर नहीं कर सकते, बाद में आते हैं, थोड़ा बहुत मैंने रखा है उस टाइम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट, यही पे जो स्लाइड में मैंने रखा है जो जो एनिमल्स एटलीस्ट पाया जाते हैं वो मैंग्रोव मतलब सुंदरवन एरिया में, वही मैंने रखा है। ओके नेक्स्ट। ये एनिमल्स पक्षियों के नाम बता दीजिए ना, हमें नहीं पता, न्यू है हमारे लिए। सर मोस्टली सारे को मुझे नहीं पता है, ये जो सारे वाइल्ड एनिमल है तो टाइगर तो आपको वो तो पता ही होगा, एक क्रोकोडाइल है ना, ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, वोडी क्रोकोडाइल समथिंग इसको नाम बोलते हैं। और जैसे कि मैंने बोला है यहीं पे देख सकते हैं कैट के पास जो जो एक बर्ड का पिक्चर है ना, वो उसको किंग फिशर जो बोलते हैं, यहीं पे ऑरेंज कलर में भी ये एक है। और डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स भी है जो इतना मुझे पता नहीं है। और यस इंद्रानिधि यस हमें पूछ रही थी कि आपने लेपर्ड है क्या सर? टाइगर स्नेक के बाजू में देखो, ये जो लेफ्ट हैंड में Yes, स्नेक के बाजू में वो यस लेपर्ड है क्या वो? यस सर। अच्छा, लेपर्ड और टाइगर दोनों मिलते हैं। अर्नब सर चीता बाघ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेपर्ड बोलते हैं। यस चीता करेक्ट। चीता लेपर्ड मतलब। और सीमा मैम मैं ना पूछ रही थी कि इसमें से जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स सब दिखा रहे, आपने कुछ देखा सामने से? टाइगर तो ऑब्वियसली मैंने देखा है, जब भी जाती हूँ तब भी देखती हूँ, मतलब अभी केज के अंदर है। और क्रोकोडाइल भी देख जाते हैं, मैंने देखा है। बर्ड भी बहुत सारा नहीं, कुछ देखा है। स्नेक्स भी कुछ देखा है, मतलब केज में के अंदर नहीं, बोट से जब जाते हैं ना अंदर तब भी दिख जाते हैं ये सारे। घूमते हुए देखा आपने? यस मैम, घूमते हुए कुछ देखा है बहुत दिन पहले, लेकिन अभी थोड़ा कम दिखते हैं। जैसे कि टाइगर भी अभी थोड़ा कम दिखते हैं, अगर बहुत डीप तक जाते हैं तब भी दिख जाते हैं, अदरवाइज दिखते नहीं है। यस रोशन सर। अच्छा, ये दुर्गा पूजा में दुर्गा माता के जो पीछे जो खड़ा होता है ये बंगाल टाइगर यही होता है ना? ज्यादातर तो हमें लगता है यही होता है। हाँ आई गेस यही होता है, यही टाइगर होता है। ओके सुदीपा जल्दी थोड़ा कर लो।
टाइगर नहीं होता सर। हाँ वो तो Sorry, लायन होता है। सर ये लायन होता है। कभी कभी टाइगर भी तो होता है। टाइगर किसके पीछे होता है मैं वो बोलूंगी शेरा सर। वाली, एक बोनो बेबी नॉट शेरा वाली। एक बोनो बेबी पूजा होते है सुंदरबन में, तो मैं वो कल्चर के अंदर मैं थोड़ा उसके बारे में बात करूंगी। ठीक है, एक दुर्गा माँ का एक अलग फॉर्म है। तो यस, तो यही पे आप देख सकते हैं मैंने छोटा करके ये लाइक रखने का कोशिश किया है कि हाउ दैट पीपल दे लिव देयर लाइफ, लाइक सुंदरबन पीपल यू नो दे लिव लाइक ए वेरी सिंपल लाइफ, लाइक their life kind of very easy. They just want 3 times food, like food in the sense like they mostly take rice and different kind of vegetable sabji, and their relationship between their neighbor and their different kind of religion, and all and also the bonding, the community bonding, and their love between their other religion people, even the normal people, and also the with the natures and all life animal. It's too strong, it's too strong. And uh, their life, like, it's very easy and very simple. They don't have any kind of high demands. They always like live like a मैंने आज कमा लिया, आज खा लिया, देन कल के बारे में कल सोचेंगे। तो ऐसा एक लाइफ वो लोग जीते हैं। अभी कुछ कुछ दिख जाते हैं कि थोड़ा ऊपर का फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन मोस्टली पीपल ऐसा है कि बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं ये लोग, बहुत सिंपल लाइफ। तो नेक्स्ट में जाते हैं, सौरभ सर प्लीज। मैं भी ये कवर होगा, आगे करके पूछ ही देता हूँ। ट्राइबल एरिया है सुंदरबन, आई थिंक सो, पूरा ही ना? या मोस्टली ऐसा ही है। जैसे कहीं इंडिया में काफी सारे ट्राइब्स है, वो अपने लोकल डिटी को पूछते हैं। सपोज जो पेड़ों को भगवान मानते हैं, नदियों से प्रेम करते हैं, साथ में जो भी अन्य वन्य जीव वनस्पतियां हैं उनको समर्पण के भाव से देते हैं। सुंदरबन में भी ऐसे ही होगा शायद। यस सर, है, डिस्कस करेंगे, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में है सर। या शुदीपा, ये पूछ रही थी कि मैं अचानक से कोई लायन अगर गांव के अंदर चले आए तो मैंने सुना हंसिए मत, पूरा सुनिए ना। अरे लायन नहीं आएगा, वहाँ लायन नहीं है बेटा, नहीं है बाबा। टाइगर 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 आ टाइगर जाएगा, हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर आएगा। इंसानों के ऊपर अटैक भी तो कर देता है ना। पहले बहुत होता था, पहले बहुत होता था, अभी भी नहीं, होता नहीं है ऐसे नहीं है। अभी बहुत, अगर लाइक कोई फॉरेस्ट के अंदर जाएगा, लाइक कभी कभी ऐसा भी है 20% ऐसे उन लोगों का इकोनॉमी को फॉरेस्ट का फिशिंग से होता है, बहुत वुड कटिंग से होता है। तो उस टाइम जब जाते हैं ना, डीप में जब चले जाते हैं, अभी भी होता है कि वो जो टाइगर है ना खा लेते हैं, घर नहीं लौटते हैं, अभी भी ऐसा है। लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था, मतलब गांव में चले आते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा प्रोटेक्शन वगैरह सारी कुछ हुआ है। अब ऐसा एक न्यूज है, अगर टाइम भी कम है तो मैं बोलना चाहती हूँ, लाइक नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर ही ऐसा हुआ है कि कुछ एक साथ मिलके गए थे, मेरी गांव से गए थे फिशिंग के लिए। एक जो आदमी था, एक मेल था, जो गिर गया है रिवर में, अभी तक आज तक लौटा नहीं है। तो उनका फैमिली, ऐसा रिचुअल है कि 1 साल के अंदर अगर नहीं लौटते हैं तो उसका अंतिम क्रियाक्रम जो होता है ना वो करते नहीं है। तो अगर 1 साल हो जाएगा तभी करेगा, तो अभी तक किया नहीं है, 1 साल हुआ नहीं है, तो वेट कर रहा है आएगा या नहीं। तो ऐसा ही लाइफ है सुंदरबन का, कभी कभी रिवर में गिर जाते हैं, कभी कभी टाइगर लेकर चले जाते हैं। तो गाँव में अभी नहीं आते हैं, बहुत कम हो चुका है। और एक क्वेश्चन था कि वहाँ पे मैंने सुना एक विधवाओं का गांव है, क्या ये सच है? नहीं, ये मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गांव में विधवा लोग सारे लोग एक ही साथ रहते हैं, ऐसा कुछ रिचुअल्स तो नहीं है। मैं भी ये सुनी थी, ये तो गोसावा के जगह है ना, उधर ये होता है, मैं भी ये सुनी थी।
हाँ अब मैंने नहीं सुना है यार ऐसा, कभी सुना मतलब मेरे दादाजी से जब ये सुंदरबन पहले पहले बैठ रहा था उस टाइम मेरा दादाजी बांग्लादेश से इस तरफ आए थे, आके वो फॉरेस्ट एरिया काट के बैठे थे, तो उनसे भी मुझे कभी सुनने को नहीं मिला। और जो सुंदरबन के बारे में जो जो मुझे पता है उनसे ही पता है, तो अभी तक तो सुनने को नहीं आया है। सुदीपा का क्वेश्चन यही था कि एक विधवा का जिसका हस्बैंड मर चुका है उनका एक अलग सा एक विलेज होता है, तो वो है या नहीं, तो वो मेरा जानने को नहीं है। ओके, तो यही पे थोड़ा कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में बात करते हैं। तो यही पे जो बंगाली हिंदू मेरा एक क्वेश्चन था मैम। दिलीप, ये थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी 5:28 हो चुका है। आई थिंक मेरा काफी सारा स्लाइड्स है। ओके, सॉरी। हाँ, तो यही पे जो कल्चर जो मोस्टली जो हिंदू कल्चर होता है वही है, और जो सॉन्ग्स है वो बाउल और भाटियाली बहुत ज्यादा चलते हैं मोस्टली इन बांग्लादेश। You will find that भाटियाली also. So and the festival that we have usually the Durga Puja, all of you know, and the most important and most important festival or culture whatever it is that we follow, like village area, the farming farming families that we follow, that is the Banu Bibi Puja and Nabanno. Banu Bibi Puja, you know what Banu Bibi Puja is? That like we are the Sundarbans people. We worship goddess of forest for take care of us from tiger, who will give the protection from the tiger. The goddess is kind of form of Ma Durga. So in Ma Durga, we'll find a lion, and in Banu Bibi Mata, you'll find the with the tiger. And Nabanno, it's also a famous festival in all over, I think, West Bengal. For Bengali peoples, Nabanno, it's called mid-November. They offer the rice. Mostly the rice farming family, they used to celebrate. They celebrate this festival Nabanno. They offer payesh, that rice pudding, to the goddess, that deities. The वो लोग माँ लक्ष्मी को ऑफर करते हैं। Traditions पे तो food mostly the same, but the fish, the seafood बहुत ज्यादा लेते हैं, और हैंडक्राफ्ट्स जो है, जो सुंदरबन फॉरेस्ट में एक ट्री मिलता है, वो पाम ट्री बोलते हैं उनको, नीपा आई थिंक द नेम। तो वही ट्री को कलेक्ट करके वही से बहुत सारा होम डेकोर ऐसा कुछ वो लोग बनाते हैं, और वही डिफरेंट काइंड ऑफ हैंडक्राफ्ट वही से वो लोग तैयार करते हैं। तो इट्स लाइक these are the culture and traditions we have, as I know. Yeah, next. Here if you want to ask something you can. यही पे देख सकते हैं, मैंने पिक्चर रखा है। लेफ्ट हैंड साइड में जो टाइगर दिख रहा है ना, ये बानो बीबी पूजा है, एंड देन दुर्गा पूजा तो आप सभी को पता है, और लास्ट में जो थर्ड पिक्चर है वो है नबान्नो, जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट। तो यही पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि द अर्निंग सोर्सेस इन द सेंस लाइक द इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी। तो मोस्टली 85% of economy it's depend on the rice farming, and also the most important that source is that fishing, curb collections, and honey collections from forest, and then obviously we have the tourism and ecotourism. So from tourism and ecotourism बहुत ज्यादा होता है, like अभी हो रहा है बहुत ज्यादा, जो लोकल इकोनॉमी का जो सोर्स है बहुत ज्यादा यही से भी आते हैं, और स्मॉल ट्रेड और हैंडक्राफ्ट्स तो है ही, मोस्टली राइस फार्मिंग है। या नेक्स्ट। यस सौरभ। कोई अच्छा, यस सौरभ। जैसे पंजाब में गेहूं होता है, राइस होता है, तो ऐसी कोई हार्वेस्टिंग वाली फसलें नहीं है यहाँ पे सुंदरबन में? तो चावल बहुत ज्यादा होता है या कुछ ऐसा?
ये डिपेंड करते हैं, लोग बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ राइस ना सीजन के ऊपर उगाते हैं। जैसे कि अगर मैं नाम बोलूँ तो क्या बोलूँ, डिफरेंट काइंड ऑफ, मेरा नाम अभी नहीं आ रहा है दिमाग में, मोटा वाला, मतलब बहुत सारा करते हैं। अगर किसी और को पता है तो थोड़ा बोल सकते हैं। सुहाना मैम, yes. वहाँ पे थोड़ा सा एज बिकॉज वहाँ पे थोड़ा मिट्टी थोड़ा नमकीन है ना इस टाइप का, इसीलिए राइस होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए लोकल एकदम वहाँ का लोग में भी थोड़े वो, जैसे वो बोल रही थी, थोड़े मोटे वाले चावल और थोड़े लाल लाल कलर के होते हैं, जिससे कि मूढ़ी बहुत अच्छा बनता है, मतलब जहां तक मुझे पता है। तो वो मूढ़ी बनाने वाला काम भी शायद सुंदरबन में काफी होता है, और उधर खाने वाले भी है बहुत, मूढ़ी खाने वाले। और वो चावल मतलब बहुत होता है ऐसा नहीं, क्योंकि पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है उधर ना, नमक का पानी होता है। नमक का पानी है, इसलिए वो लोग ना उसके ऊपर बेस करके बहुत सारा लाइक राइस उगाते हैं। पहले जो मोटा वाला राइस था ना, जो रेड रेड कलर का था, अभी वो मिलता नहीं है। पहले बहुत मिलता था, अभी पूरा वो छोटा वाला व्हाइट कलर का ऐसा अभी मिलता है। तो तो अभी थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब मिट्टी ना एक साइक्लोन आया था 2018 में, मैं वो भी थोड़ा डिस्कस करूंगी ऐसा मैं सोची हूँ। वो साइक्लोन के बाद से थोड़ा चेंजेस आया है, बहुत सारा चेंजेस आए हैं वो जो सुंदरबन एरिया में। ओके, देन जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है यहीं पे मोस्टली रिवर और फॉरेस्ट के ऊपर बेस करके ही है। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जॉब। तो यहीं पे मैं ये थोड़ा बोलना चाहती हूँ ना, पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज मतलब सब लोग करना चाहते हैं, कुछ काम नहीं है क्या करेंगे, छोटा मोटा काम कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ना, ये बहुत चेंज हो चुका है। अभी सुंदरबन में लाइक कोई रहना नहीं चाहते हैं, ऐसा काम कोई करना नहीं चाहते। तो बहुत सारे है, लाइक 60% ऑफ पीपल दे लोग बाहर चले आते हैं काम के लिए, और बाकी जो होता है वहीं पे बैठ के थोड़ा बहुत यही जो फ्रेशरी हो जाए, टूरिज्म जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जॉब जो है वो कर लेते हैं। देन गवर्नमेंट जॉब इट्स टू लेस, लाइक द अपॉर्चुनिटी यू विल गेट इट्स नॉट बेयरेबल, लाइक द गवर्नमेंट जॉब इतना ज्यादा मिलता नहीं है। तो अभी भी I think the reason I maybe the politics, even I don't want to discuss about more that that about the politics and other things, but 80 or 90% because of that politics only. Now the Sundarbans, it's destroyed a lot. You can't find any kind of government job. Like even government job तो दूर की बात है, जो नेचर और जो रिवर के ऊपर बेस करके जो हम लोगों का दिन चलते हैं ना, वो भी बहुत सारा कम हो चुका है, मतलब इतना डिस्ट्रॉय हुआ है। ओके, नेक्स्ट। तो चैलेंजेस जो सुंदरबन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इफ अगर मैं डिस्कस नहीं करूं तो आधा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हर साल एटलीस्ट 3 से 4 like more than 3 times we have to face this kind of cyclone, and नदी से पानी आ चुका है गांव के अंदर, ये हम लोग फेस करते हैं हर साल। मतलब एक साल भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि इस साल हुआ नहीं है कुछ। यस सर, आपकी आवाज नहीं आई रोशन सर, फिर से पूछिए। ओके, तो क्या है, यही पे मैं जैसे कि हर साल हम लोग ये सारे सिचुएशन फेस करते हैं, और RTS का मतलब क्या है सर, मुझे समझ में नहीं आया। सॉरी, एरिया सुंदरबन एरिया आई मीन। अभी आप बोल रहे थे ना सुंदरबन डिस्ट्रॉय हुआ है, तो कैसे, क्यों डिस्ट्रॉय हुआ है? नेचुरल रीजन या मैन डिस्ट्रॉय ऐसा हुआ मैन मेड, कभी सारे बोल सकते हैं मैन मेड ही ज्यादा हुआ है, क्योंकि पॉलिटिक्स का बात फिर से आ जाते हैं। लाइक
वो लोग ट्राई कर रहे थे बहुत कुछ करने के लिए वहीं पे, लेकिन किया नहीं है, बस फॉरेस्ट को खत्म किया है। और मैन मेड की ऐसे, अगर हम मेरे पास काम नहीं है, बाहर भी मैं नहीं जा सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी? जो मेरा सोर्सेज है वो फॉरेस्ट से, मैं उसके ऊपर ही डिपेंड करूंगी। तो वो करते करते अभी ऐसा हो चुका है ना, वो वुड मतलब जो जंगल का जो पेड़ वगैरह होता है ना, काटते काटते ऐसा जगह आ चुका है कि अभी शायद कुछ सालों बाद हम लोग ये सुंदरबन दिखेंगे ही नहीं, है ना। कुछ कुछ जगह पे, बहुत सारे जगह पे नहीं, कुछ कुछ जगह पे, जैसे कि मैं जहाँ रहती हूँ, कुछ साल बाद ऐसा हो सकता है। We can expect that, after few years we'll not find kind of Sundarban and Sundari tree and beautiful wildlife, will not find. So it's like that. So man-made ज्यादा हुआ है, और जो साइक्लोन वगैरह है उनमें से कभी हो जाते हैं, हर साल थोड़ा बहुत तो होता है। तो यही पे जैसे कि अब देख सकते हैं, इतना सारा सिचुएशन हम लोग फेस करते हैं, बहुत सारा डिजास्टर जो हम लोग हर साल फेस करते हैं। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, यही पे मैं शेयर करना चाहती हूँ बहुत जल्दी। लाइक बहुत बड़ा साइक्लोन दैट आई हैव फेस्ड इन माय 26 years लाइफ, दैट वाज द ईयर ऑफ 2008 और 9। एक आइला बोल के एक साइक्लोन आया था। साइक्लोन ना रिवर से पानी आया था, सारे कुछ उस दिन एक ही साथ हुआ था। तो पानी आके उस टाइम इतना खत्म कर चुके थे, एक जनों का घर नहीं बचा हुआ था। हम लोग एटलीस्ट 3 to 5 weeks हम लोग रास्ते में थे। फर्स्ट वीक तो पास का एक बिल्डिंग था, जो अगर साइक्लोन होता है तो हम लोग सारे लोग वहीं पे जाते, वहीं पे जाके रुके थे। देन हम लोग रास्ते में रुके थे, और हम लोगों का फूड सारे डिपेंड करते हैं, अगर सिटी से आके कोई पानी देंगे, खाना देंगे, ड्राई फ्रूट्स देंगे, उसके ऊपर हम लोगों का पूरा खाना डिपेंडेंट था उस टाइम। तो 2018 में जब ऐसा हुआ तो बहुत टाइम लगा सारे कुछ एक नॉर्मल जोन में लेकर आने के लिए। देन 2011 ममता दीदी आया पॉलिटिक्स में। देन दीदी ने फर्स्ट 5 years बहुत अच्छे से काम किया सुंदरबन में। मतलब अभी थोड़ा बहुत जो सुंदरबन में है, और दीदी का बहुत सारा हाथ है उसके पीछे। उन्होंने सबको घर दिया, मतलब घर का ऐसा हुआ था ना, पूरा डिस्ट्रॉय करके चला गया था, किसी को कुछ नहीं था। तो तब उन्होंने घर दिया, देन फ्री रेशन दिया, खाना वगैरह दिया। देन अभी जो सिचुएशन है अभी थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन हर साल में कुछ ना कुछ हम लोग फेस करते हैं। इतना भी कंट्रोल में नहीं आया कि पूरा टेंशन फ्री होके हम लोग बैठ सकते हैं। अगर उस टाइम अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आए तो हम लोगों का नींद चले जाते हैं, खाना पीना तो पूरा बंद हो जाता है कि अभी पानी आ जाएगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, फ्यूचर का क्या होगा। तो ऐसा अभी भी होता है, बंद नहीं हुआ। आप कहाँ रहते हो? यू सेड आप जहाँ रहते हो वहाँ बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है, पेड़ पौधे एक्सेट्रा। कहाँ रहते हो? विच एरिया डू यू लिव इन? मैम मैं जहाँ रहती हूँ ये साउथ 24 परगनास का बासंती बोल के एक जगह है, प्लेस है। जौरखाली, मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एरियाज। तो माय एरियाज इज जौरखाली। तो वही पे लाइक जो सिचुएशन अभी है, आई गेस जौरखाली इज एन आइलैंड, राइट? यस मैम, यस रोशन सर। ये आपके जिले का नाम साउथ 24 पारगानाज जो भी है, इसका अर्थ क्या है? ये कैसे पड़ा? बहुत यूनिक लगता है नंबर, किसी जिले के नाम में नंबर है 24। आई थिंक साउथ में है, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स ओनली दे हैव they kept South 24 Parganas. ठीक है, थैंक यू। अच्छा, वन क्वेश्चन सीमा कि इस पे प्रकाश डालिए कि अगर सुंदरबन पूरा ये फॉरेस्ट अगर डिस्ट्रॉय होता है, खत्म हो जाता है, तो क्या पश्चिम बंगाल का एरिया बचेगा क्या, या वो दलदल हो जाएगा? क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बड़े ही प्रोमिनेंटली आते हैं और शायद इसका असर बिहार तक पहुंचने की संभावना है। क्या
ऐसे स्पीड चल तो रहा बहुत है ज्यादा सर, है। अगर ऐसे चले, अगर अभी का जो पॉलिटिशियंस और जो भी रूल क्षमता में आए हैं, अगर काम ना करे, शायद हो सकता है, शायद। थैंक यू सीमा। नेक्स्ट में जाते हैं सर। एक जगह है कॉल्ड बिधोआपल्ली, इज इट स्टिल देयर? मुझे ना ये सुनने को नहीं आया, ये तनुश्री शुदेपल से पहले भी मुझे सुनने को मिला था, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है ये विधवा पल्ली कहाँ है। और मुझे Maybe it is gone. Maybe it is not there anymore, but there was one place where every family had widows. So it was called बड़े घर में Bidhoapur. हम सारे मिलजुल के रहते हैं, कोई किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अलग जगह में जाके भी नहीं रुकते हैं। नहीं नहीं, अलग मैंने जगह ना ये में जाके रुकते नहीं है, but the thing is in that village सब all the men used to go to the forest honey collect करने के लिए, या wood cutters या ऐसे काम के लिए जाते थे। they used to be attacked by tigers. That's why that place was called. I have visited Vidhwapalli, so I know it. But that was much before you were born. उस समय आप जन्मी ने, आपका जन्म ही नहीं हुआ था। It was in the mid-80s that I visited it. Okay. और एक मैंने ये सुना है वहां के बारे में, जब सुंदरबंस के बारे में, कि वहां के जो लेडीज हैं वो जनरली दे आई मीन जो ड्रेसअप करते हैं ना, वो लाइक विडो के करके रखते हैं, क्योंकि वो सोच मतलब पति लोग जाते हैं लेकिन वो सोच के रखते हैं कि मेरे है ही नहीं, वो वापस आ जाएंगे, फिर थोड़ा मे बी गेट अप एंड ड्रेस्ड अप, ऐसा वाला। ये मैंने सुना है। ये क्या है ना, मतलब वो लोग क्या Everyday नहीं सोचते हैं कि मेरा हस्बैंड नहीं आएगा, ये मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने मेरा मम्मी को देखा है। मेरा पापा कभी भी नहीं करे, मेरा पापा बहुत पॉलिटिक्स में ऐसा वगैरह वगैरह करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन मेरा जो ग्रैंडपा है वो जाते थे, लाइक वो वुड कलेक्ट करना, ज्यादातर वो फिशिंग के लिए ही जाते थे। आई थिंक मैं बोल रही हूँ 2000, मतलब मेरे बात के बाद जो मैंने देखा है। तो मेरा मम्मी भी जी क्या करते थे, वो जो सिंदूर होता है ना, जो बंगाली वुमेन करते, वो नहीं लगाते थे, ऑयल नहीं अप्लाई करते थे। तो ऐसे वो लोग मानते हैं कि उनके अच्छे के लिए कर रही हूँ, वो लौट के आएंगे, देन हम लोग का यूज करेंगे, तो उनके अच्छे के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए ऐसा वो लोग मानते थे। अभी भी करते हैं, शायद अभी भी करते हैं। अभी शायद शुमोना, आई डोंट थिंक दोस फियर्स उतना है आजकल। दे मे बी यूजिंग बेटर प्रोटेक्शन। पहले क्या था, हाँ, they would just put a mask behind their head so that the tigers would think that they wouldn't attack from the back. Now they must be having better protection. लेकिन ये Bidhwapalli used to be very famous. Many magazines have written about it. It is near Goshaba. गोशाबा में एक बड़ा हॉस्पिटल है ना, तो गोशाबा के पास ही है ये Bidhwapalli. ओके, मतलब विधवा पल्ली ऐसा नहीं है कि जहाँ विधवा जाके रहते हैं, जैसे ये सुदीपा तनुश्री। नहीं, लेकिन बिकॉज प्राइमरली उस समय जब मैंने विजिट किया, कोई भी इंडस्ट्री नहीं था वहां पे। देयर वाज ओनली हनी कलेक्शन और वुड कटिंग, और थोड़ा सॉल्ट भी बनाते थे वो। दे यूज्ड टू आल्सो मेक सॉल्ट अभी भी होगा वहां पे, नमक बनाते हैं, नमक फैक्ट्री। मतलब हाँ, तो वहाँ हर फैमिली में देवर विधवास, because the honey collectors sometimes they don't return. People who go and forage in the forest, they used to get very badly attacked by tigers. और उस समय क्या था, humans were not allowed to attack tigers. If they did, they had to, even in those days, I think they had to pay some 35,000 rupees or something was the fine. So, I mean, they wouldn't dare to attack tigers, I guess. यस मैम, बहुत ज्यादा था पहले, अभी भी होता है, और अभी भी डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है। जो बाहर आते हैं काम के लिए, तो बाहर के मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और वहीं पे जो रह जाते हैं, बस वही हनी कलेक्ट करना, फिशिंग करना,
ट्रेजरी यही इसके ऊपर उन लोगों का इकोनॉमिक जो सोर्सेज है वही अभी भी है, ऐसे ही है। लेकिन अभी बिजली तो है ना? हाँ, बिजली तो आया वही 2011 के बाद, वो जो साइक्लोन 2008 में आया था उसके बाद बिजली आए हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कूल बनाया गया है, और हॉस्पिटल आई थिंक कुछ बनाया गया है, लेकिन उसका हाल अभी जो है वो बहुत खराब है। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बहुत अच्छा एक इलाज अब से वहीं पे मिलेगा। आ तो जाते हैं, कर सब लेते हैं, लेकिन अभी का हालत बहुत खराब है। पहले से अच्छा होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले टाइगर कंजर्वेशन इतना बड़ा इशू था कि ह्यूमंस को उतना वैल्यू नहीं देते थे। टाइगर कंजर्वेशन वाज अ बिगर थिंग। हाँ, RKM आश्रम मतलब एक है छोटा सा, 2-3 स्कूल है, विवेकानंद स्कूल है, वो बहुत अच्छे से चल रहा है। ये सौरभ शाह। मैं तो इतना ही कहना चाहता था, हम आगे बढ़ते हैं, वृद्धा पुलिस से आगे बढ़ते हैं, समय कम है हमारे पास। ओके, तो यही पे आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं सर्वाइवल विथ नेचर, लाइक बहुत सारा सिचुएशन तो फेस कर लेते हैं कि हाउ वी फेस दिस चैलेंजेस एंड हाउ वी सर्वाइव। लाइक ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये बहुत हेल्प करते हैं, ये जो रिवर का पानी आ जाना है, इतना ज्यादा जो डिस्ट्रॉयमेंट होते हैं ये हेल्प करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैन मेड डिजास्टर जो अभी चल रहा है उसके वजह से इतना प्रोटेक्शन मिलता नहीं है। और ट्रांसपोर्टेशन का अगर बात किया जाए यहीं पे, तो अभी बहुत सारा ब्रिज बनाया गया है, और ऐसा बहुत सारा आइलैंड है जहां जाने के लिए अभी भी बोट वगैरह यूज करना होता है। बोट के अलावा हम लोग जा नहीं पाते हैं, और वो लोग ए पर मतलब दूसरे तरफ आ नहीं पाते हैं, तो अभी भी बहुत सारा आइलैंड ऐसा भी है। और मोस्टली ये बोलना है कि इन सुंदरबन में जो जो रहते हैं इन लोगों का दे हैव देयर विल पावर बोले, और जो मेंटल स्ट्रेंथ बोले, ये बहुत ज्यादा होते हैं। लाइक हर साल इतना कुछ दे फेस एंड द हाउ दे फेस ऑल दोस चैलेंजेस एंड द हाउ एंड हाउ दे सर्वाइव। इट्स लाइक I really salute for them, and I have faced 3 or 4 this kind of situation, so I know and I have seen कि people कैसे वो लोग फेस करते हैं, और कैसे उन लोगों के अंदर एक जिद रहते हैं कि मुझे ठीक करना है फिर से। मतलब जब भी ये सारे डिजास्टर होता है ना, पूरा खत्म करके चले जाते हैं, लेकिन फिर से किसी ना किसी तरीके से ये लोग फिर से खड़े होते हैं। तो ये जो एक विल पावर, ये जो मन का एक जो स्ट्रेंथ है, ये बहुत ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये आप देम क्यों कह रहे हैं? आई थिंक इट इज यू आल्सो। व्हाट? आप कह रहे हैं ना देम, सैल्यूट टू देम, व्हाई देम? इट इज यू आल्सो आई थिंक। सैल्यूट टू अस ऐसा बोलिए। Salute to us. Okay, so development initiatives like यहीं पे जैसे कि बोला है, मैं जो भी डाटा मैं अभी दे रही हूँ, मैं 2000 के बाद जो मैंने खुद देखा है मैं उसको भी थोड़ा इंक्लूड करूंगी। 2000 से 2011 तक एक वाम फ्रंट बोल के एक पॉलिटिशियंस ये लोग थे, वो लोग ज्यादा काम नहीं किया है। तो जो भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है वो 2011 के बाद, दीदी आने के बाद थोड़ा बहुत किया है, ममता दीदी आने के बाद थोड़ा बहुत किया है। जो भी 5 years तक उन्होंने किया है, देन उसके बाद बड़ा नहीं है। तो उन्होंने रोड किया है, बहुत सारा जगह रोड, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक वो आया है, उन्होंने घर दिया है, तो बहुत सारा डेवलपमेंट ऐसा ऐसा आया है। और लेकिन फिर भी बहुत सारे कुछ कमियां है, जो बहुत मेन थिंग कमियां है अभी भी, जिसलिए अभी भी
सुंदरबंस का पीपल फ्रीली नहीं घूम सकते हैं, फ्रीली बाहर नहीं जा सकते हैं। उन लोग बहुत छोटा एज में ही कहीं ना कहीं बाहर जाके काम करना, ये करना वो करना, इसमें लगे जाते हैं। उन लोगों का एक जो फ्यूचर का टेंशन ना, मैं बाहर अच्छे से पढ़ाई करूंगी, बाहर जाके बहुत अच्छा जॉब करूंगी, ये उन दिमाग में नहीं आते हैं अभी भी, मतलब ऐसा है। तो ये सारी हम सब। अच्छा, आप बताना चाहेंगे कि क्या आपने देखा है कि बांग्लादेशी अ, जो वहाँ के शरणार्थी हैं, जो लोग आते हैं साउथ पर 24 परगना में, काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा है ना, वहीं यस, से आते हैं ना, आप लोग तो देखे होंगे। देखे होंगे, मतलब मेरा खुद का दादाजी आए हैं, मेरे खुद का पापा भी आए हैं बहुत दिन पहले, अभी नहीं। और अभी भी, मतलब अभी तो बंद हो चुका है, अभी तो नहीं जी। है, मतलब अभी तो पता ही है आपको क्या सिचुएशन है वेस्ट बंगाल में। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2010 to 15, ऐसा कुछ बहुत सारे इंसान मेरे गांव में भी मैंने देखा है, आसपास में अगर न्यूज में भी देखेंगे तो बांग्लादेश का इंसान जो है वो आके पहले ये साउथ 24 परगनास, मतलब ये नॉर्थ और साउथ में आके ये लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पास है, ब्रॉड क्रॉस करके जो बॉर्डर जो क्रॉस करना बहुत इजी है, छुपा के चले आते हैं, आके गांव के अंदर बैठ जाते हैं। अगर जान पहचान का कोई है तो और भी ज्यादा इजी हो जाते हैं उन लोगों के लिए। अभी थोड़ा बंद है, अभी तो आ नहीं पाते हैं, और हाँ अभी बंद है। लेकिन वीजा वगैरह वो सारे अगर हो तो आ सकते हैं, क्योंकि आपके बाबा कब आए थे? आई थिंक 70s में होंगे। मे बी 70s में, जब बांग्लादेश आंदोलन चला था, मुक्ति जब वाहिनी, इंडिया, ये जो डिवाइड हुआ था मुक्ति ना, वाहिनी वाला। दादाजी आए थे, ग्रांड पा आए हाँ, थे। उसी समय। हाँ, उसके बाद आई थिंक 5-6 इयर्स के बाद उन्होंने मेरे पापा को और मेरा जो आंटी है और मेरा बड़ा अंकल है, उन लोगों को लेकर आए थे मेरा दादाजी। ओ, थैंक यू, थैंक यू। नॉट 47 सुमना जी, अराउंड क्या कहते हैं 70s, जब बांग्लादेश। नहीं, she said पार्टीशन के समय, तो वो तो पार्टीशन के समय। 47। हाँ पाकिस्तान पार्टीशन नॉट इंडिया। ओके। हाँ, बांग्लादेश का भी, बंगाल का भी पार्टीशन हुआ था, वो मत भूलिए। हाँ, तो सीमा पार्टीशन के समय 47 या 47 की ही बात बता रही हैं आप? ये पार्टीशन कब हुआ था मुझे? ओके, 47 में 47। ही बहुत बड़ा 1947 में। वायलेंस हुआ था। लेकिन ये उस टाइम क्या है, बांग्लादेश और वेस्ट इंडिया, पाकिस्तान। बांग्लादेश और इंडिया उसी टाइम भाग हुआ था क्या? हाँ, उस टाइम वो पाकिस्तान था और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। उसके बाद उन दोनों को अलग किया गया 1971 में, तब जाके बांग्लादेश हुआ इंस्टेड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। उस टाइम मेरी मम्मी आई थी 71 में। माय मदर केम फ्रॉम बांग्लादेश। वाह, एक और रहस्यमय जानकारी। वाह, तो मेरा दादाजी बहुत पुराना है, मुझे आज पता चला, मुझे तो लगता है 70 में। ओके रजनी मैम। मैं बहुत ही one second, my video. Thank you so much for giving us such an interesting perspective. मैं जानना चाहती थी बेसिक एजुकेशन के बारे में वहाँ पे, बिकॉज आपने बताया बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, people are very resilient. So what is the opportunity for basic education? Are there some NGOs working over there to give education? Non-government organizations की तरफ से है? मैम एनजीओस अभी कुछ आए हैं जो प्राइवेट स्कूल के तरह, मतलब प्राइमरी सेक्शन का चलाते हैं, लाइक केजी स्कूल एंड 1 to 5। और उसके बाद 5 के बाद अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपका गवर्नमेंट स्कूल में जाना होगा। तो गवर्नमेंट स्कूल तो आपको पता है, अभी गवर्नमेंट स्कूल मतलब इतना अच्छे से मिलता नहीं है एजुकेशन। तो जो भी एजुकेशन पाना होता है वो गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू ही आते हैं। और अगर अच्छे से प्राइवेट स्कूल में जाके आपको पढ़ना है तो सिटी में आना होता है, इन द सेंस कि कोलकाता में आना होता है और बाहर सिटी में जाना होता है। तो यही है और मेरा सेकंड पॉइंट था, व्हाट अबाउट हेल्थ?
और हेल्थ का जो है मैम, हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट है। आपको मिलेगा नहीं इतना ज्यादा। प्राइवेट अगर मिलेगा तो बहुत हाई है, मतलब जहाँ जो सुंदरबन पीपल है ना वो नहीं जा सकते, ऐसा वाला प्राइवेट हॉस्पिटल है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो रिजिमल छोटा मोटा ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है। तो अभी वही पे जो है एजुकेशन, हेल्थ, मतलब हर चीज को डेवलपमेंट चाहिए, हर चीज के ऊपर काम होना चाहिए। प्राइमरी काफी हेल्थ वहाँ केयर सेंटर्स भी होगा वहाँ पे, है ना? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। हाँ है मैम। टूरिज्म है वहाँ पे कुछ? सेंटर्स तो हो हैं, but having उनको doctors, doctors नहीं। practitioners is very difficult there. नो, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में डॉक्टर्स नहीं, यू हैव पैरामेडिकल फोर्सेस। No, now we have the doctors also, but it is very difficult to have them. या इन इसलिए रहते सुंदरबन, नहीं है वहाँ, because रहने की जगह भी नहीं होती। इन सुंदरबन यू मोस्टली हैव पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स, ओके, या और वो लोग अपना इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ज्यादा फॉलो करते हैं वहां पर। हाँ थोड़ा बहुत, मतलब टूरिज्म कुछ है वहाँ पे, क्योंकि वही लोग तो जाते हैं विजिट करने के लिए। वही एक चीज है जो अभी भी बचा हुआ है वहीं पे, और उसके वजह से अभी भी थोड़ा इनकम वगैरह हो जाते हैं। और अभी भी होटल्स और होटल्स कुछ है वहाँ पे? फ्यू मैम, ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत मिनिमम है। I think सीमा ये grow कर रहा है, right? The tourism over the past 10 years, this houseboats इतने आए हैं, and they have packages, and like 2023 I went, all new hotels and resorts, not hotels, resorts, because land is ample there, खाली जमीन है, तो वो घाट के हाफ अ किलोमीटर अंदर खेतों के बीच एक सुंदर सा रिसोर्ट बना दिया। सो रिसोर्ट सीमा, में आपने कभी टाइगर को देखा है? यस मैम। कैसे, वो एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस मतलब पहले तो मैंने पहले फर्स्ट मेरा जो टाइगर में आंखें वही पे देखी थी। ओके, और एक जो देखी थी, मैं अंदर नहीं गई थी, लेकिन आए थे जो सुनने को आया था, और हम लोग भाग के गए थे जंगल की, मतलब वो घायल हुआ टाइगर मैंने देखा। जो या तो ऐसे ही मुझे मैंने देखी थी, बट दिख सकती हूँ, और आप लोग सभी भी देख सकते हैं अगर आप सुंदरबन में आए और हम लोग बोट लेके पूरा फॉरेस्ट के अंदर जाए। I think विवा टीम बहुत इंटरेस्टेड है टाइगर में। नवंबर टू फरवरी के अंदर जाना होगा, तो ही हम लोग देख सकते हैं कि पानी में तैर रहा है। मीटिंग फिक्स्ड है फिर तो। शिप्रा, कौन से मंथ्स है वहां पे जाने के लिए? मैम नवंबर टू फरवरी। हाँ, अपॉइंटमेंट नवंबर फिक्स्ड। टू फरवरी। अच्छा, तो टूरिस्ट जा रहे हैं आजकल, जैसे अर्नब ने बताया, बिकॉज टूरिज्म एक से ज्यादा थोड़ा रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है वहां पे। यस मैम, यस, क्योंकि वही एक चीज है जो अभी भी बचा हुआ है। और अगर वही पे ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो बहुत हाईली उन लोगों का जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो अगर अच्छे से मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा। अपॉर्चुनिटी मिले तो, यस, अपॉर्चुनिटी मिले तो, बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ओनली वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, और स्कूल के बाद बस बाहर काम पे चले जाते हैं। और कुछ अगर फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि मेरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मैंने फील किया, इसलिए मैंने बाहर चली आई। अगर नहीं तो, अगर ऐसा फील नहीं होता तो शायद मैं शादी करके अभी किसी के घर पे होती। तो ऐसा ही है, मतलब अगर मैं बोलूंगी तो ये थोड़ा मैं बोलना चाहती हूँ कि जो शादी का वेडिंग का, लाइक गर्ल्स दे
दे यूजुअली गेट मैरिड विद इन 18 और 19। 18 के बाद कोई फैमिली भी नहीं रखना चाहते हैं गर्ल्स को फैमिली के अंदर। वो लोग चाहते हैं कि शादी करवाना है, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, कौन लेगा, ऐसा कुछ उन लोगों का थिंकिंग है। वो लोग कहीं ना कहीं अभी भी बर्डन फील करते हैं। तो मोस्टली मेरे ही गांव पे शायद अभी भी मैं और 2-3 ऐसा लड़की बची हुई हूँ, सारे शादी करके मतलब दूसरे के घर चले गए हैं। तो अभी भी ये सारी चीज है वहीं पे। जितना भी मॉडर्न शायद सिटी लोग हो चुका है, लेकिन ऐसा बहुत सारा आइलैंड है जो अभी भी मतलब बहुत पीछे है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है ये, मतलब कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है। आई बिलीव कि अभी जो सरकार आए हैं, गवर्नमेंट आए हैं, वो और भी ज्यादा काम करेंगे। नेक्स्ट कितना स्लाइड बचा है? हाँ, फ्यूचर ग्रोथ, वही जो फ्यूचर ग्रोथ एज ए यंग जनरेशन दैट आई वुड लव टू सी माय सुंदरबन एज लाइक दैट टूरिज्म बहुत अच्छा हो जाए। वही का जो ग्रीनरी है, जो ब्लू इकोनॉमी है, मतलब जो फिश इकोनॉमिक जो भी है वो और भी अच्छे से आ जाए। एंड देन जैसे कि बोला है कि उन जो स्टूडेंट्स है, जो आजकल का जनरेशन है, उस लोगों का कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अच्छा सोर्सेस मिलेगा, तो शायद वो लोग और भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं, उस जगह सुंदरबन को और भी डेवलप कर सकते हैं वो लोग, लाइक यंग जनरेशन राइट नाउ। सो अगर वो सारे कुछ हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। Then obviously health, education and infrastructure, like health का मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा नीड है। हेल्थ इन द सेंस ह्यूमन के लिए तो है, उसके साथ ही एनिमल के लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग मतलब वहीं पे एक अच्छा सा कोई होता है ना, वो वेटरनरी जो बोलते हैं, जो एनिमल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल जो होता है ना, मतलब एक भी आप अच्छे से ढूंढ नहीं पाएंगे। तो मेरा मानना है, और मैं वो चाहती हूँ, जो मैंने पहले भी बोला है कि मेरा एक ड्रीम है। तो शायद मैं जब बहुत सारा पैसा कमाऊंगी, शायद मैं एक उन लोगों के लिए, स्पेशली कैट डॉग्स एंड उन लोगों के लिए मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा है। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे घर में बहुत सारा स्ट्रेट डॉग मैं पालती हूँ और कैट पालती हूँ। तो जब कुछ हो जाता है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट सिटी के पास मुझे जाना होता है उन लोगों का ट्रीटमेंट के लिए। और एक कैट और ये जो डॉग है बहुत सेंसिबल होता है। तो मेरा 2-3-4 ऐसा मतलब मर गए हैं ऐसे के लिए, ऐसे से अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला है। तो मेरा वो मानना है कि अगर हो पाए तो मैं वो करूंगी। तो यस, इट्स ऑलमोस्ट 6:05 एंड नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहूंगी सीमा, तुम्हारा सुंदरबन से सिटी के लिए कितना डिस्टेंस है, मतलब हाउ फार सिटी इज? मैम ये ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स लगते हैं। अच्छा, जिस दिन तुम आ रही थी बेलूर, वो 5 to 6 आवर्स ट्रेन लेकर आई थी क्या? बैंगलोर से नहीं, बेलूर उस दिन आ रही थी ना तुम? अच्छा, हाँ। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है ना मैम, वो बहुत ढीला है। अभी बस है, बहुत सारा व्हीकल है, लेकिन बहुत ढीला है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा मतलब टाइम लगता है। ट्रेन भी बहुत कम चलते हैं, लोकल ट्रेन चलते हैं वहीं पे। तो ओके, समझ गई। तो इसीलिए परेशानी है। थोड़ा सा नजदीक होता तो शायद बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे, है ना? क्योंकि कोलकाता में इतना अच्छा सब फैसिलिटी है, तो वो आप लोग को प्राप्त नहीं होता है। नहीं, मतलब अगर कुछ भी हो जाए, अच्छे डॉक्टर हो जाए, कुछ अच्छा चीज हो जाए, अगर खरीदने के लिए मतलब क्वालिटी वाला अगर चाहिए होता है, तो सिटी में हम लोगों का आना ही पड़ता है। ये सब छोटे छोटे आइलैंड्स है ना, सब खाली, तो कनेक्टिविटी उसके लिए भी प्रॉब्लम होता होगा, है ना? बोट से जाना पड़ता है। मैं जो आइलैंड में रहती हूँ, तो वहीं पे सिटी के साथ वो ब्रिज का कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन मेरे पास ही बहुत सारा आई थिंक आइलैंड है जिसमें ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि बोट करके जाना होता है।
तो आपको अगर जाना है, सिटी में आना है, कहीं पे आना है, तो बोट करके, मतलब जो भी सिचुएशन है, एनवायरनमेंट है, साइक्लोन है, अगर आपको इमरजेंसी है तो बोट करके आपको आना जाना पड़ेगा, ऐसा। अच्छा सीमा, एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन। आप तो इतना अच्छा आप पढ़ रही हैं, आजाद रामकृष्ण मिशन से भी जुड़ी हुई हैं, इतना आपके अंदर एक भाव है वहाँ के लोगों के लिए। क्या आप अपने सहेलियों या अपने जो अन्य लोग हैं जो लोग पढ़ नहीं पाए हैं, क्या उनके लिए कभी कभी क्लासेस वगैरह लेती हैं, या उनके लिए कभी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं सर, अभी भी तो ऐसा मैं बोलूँ तो मेरा थिंकिंग में नहीं आया, और शायद ऐसा मैं कर सकती हूँ, लेकिन अभी जो सिचुएशन, मैं दूसरा आइलैंड में क्या है पता नहीं, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वही का लोगों का माइंडसेट जो है, मैंने क्या किया था, मेरा 12th के बाद मैंने ट्यूशन करना स्टार्ट किया था, तो वही में मेरा एक और एक्सपीरियंस हुआ था। लाइक मैंने ट्यूशन पढ़ाती थी तो बहुत सारा बॉयज था, 2-3 गर्ल्स था, लेकिन एक गर्ल्स का जो मम्मी है उन्होंने मुझे एक बार बोला था, मैंने खुद गई थी बोलने के लिए कि आपका लड़की क्या आप ट्यूशन करना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम मैं मेरे लिए, मेरा पापा को सपोर्ट करने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रही थी ट्यूशन करना, ये वो वगैरह वगैरह, दिन मैं खुद जाती थी पूछने के लिए। तो एक मम्मी मुझे बोला था, एक लड़की का मम्मी, कि लड़की को पढ़ा के क्या होगा, वो तो 18 के बाद मुझे शादी करवा के देना है। तो ये एक मिला था। अभी का शायद थोड़ा चेंज हुआ है, अभी का माइंडसेट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे कि आपको बोला, मेरे गांव में एक भी लड़की बची नहीं है। लड़का बहुत एज तक घर पे बैठे रहते हैं, काम भी नहीं करते, फिर भी बैठे रहते हैं, लेकिन लड़की लोगों का 18 के बाद वो लोग घर से तरहने की कोशिश करते हैं। तो शायद धीरे धीरे चेंज होगा, और शायद मैं भी कर सकती हूँ कुछ, शायद। सोचिएगा, एक कभी कभी एक मंथली या कभी कभी कोई एक क्लास ऐसे अवेयरनेस का, क्या पता जो है किसी एक की लाइफ में परिवर्तन लाने में एक रोल अदा हो जाए। बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। तपन, आप बोल रहे थे अबाउट फ्यूचर प्लान्स, एक ओरिएंटेशन भी आप करवा सकते हो वहां पे, ओरिएंटेशन फॉर द गर्ल्स एंड पेरेंट्स। जोकिंग एक्चुअली। मोस्टली अभी तो पेरेंट्स के लिए शायद चाहिए होगा, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा बदलना चाहिए, देन बच्चे लोग वो लोग कुछ कर पाएंगे। मैं तो यस नहीं, how many slides are left? ये एक थैंक यू स्लाइड है शायद। बस आप अपने बस हिसाब यही पे से है कि एज ए सुंदरबन पीपल हम लोगों का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको प्रोटेक्ट करना। तो आई होप धीरे धीरे होगा, अभी का जो सरकार आए हैं वो भी और भी ज्यादा करेंगे इसके ऊपर काम, लोगों का उन लोगों का बोलेंगे, सुंदरबन जो पीपल है उन लोगों का बोलेंगे क्या करना है, नहीं करना है, वो जो एनिमल, वाइल्ड लाइफ एनिमल और जो फॉरेस्ट उसको बचाने के लिए क्या क्या करना है। और एज ए उन लोगों का एक लड़की होके कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हूँ। जो भी अभी का सिचुएशन है कहीं ना कहीं हम लोगों का रिस्पॉन्सिबल है, और हम लोग कोशिश करेंगे और भी अच्छे हो जाए, और आप सभी लोग आ जाओ घूमने के लिए, और मैं हूँ हम लोगों का गाइड करने के लिए। ओके, इसके बाद आई थिंक थैंक यू स्लाइड है तो अच्छा, थैंक यू स्लाइड से पहले क्योंकि थैंक यू तो हो गया, लेकिन अभी थैंक यू, मेन थैंक यू बाकी है। तो टीम मेंबर्स, आज सुंदरबन की सैर करके कैसा लगा? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सुंदर ही लगा। So very inspiring presentation. And this is coming from someone who has lived that life for so many years. उन्होंने बताया, पता नहीं 2008 की बात करी, शायद आप 10 साल की भी नहीं थे शीमा उस टाइम पे, राइट? लेस देन 10 years, जब आपने वो साइक्लोन और वो सब देखा लाइफ में। कितने 5 रातें ऑलमोस्ट ऑन रोड। ओ माय गॉड। ये बताना चाहिए था, ये हमारे साथ शेयर करना चाहिए था एक्सपीरियंस। So the Shima, other thing I wanted to know was that the girls there are not allowed to do anything, they're just being prepared for marriage. How did Shiva manage to get out? Very inspiring how she came out. How did she, वो बताइए थोड़ा। Shima एक काम करो ना, सौरभ सर ये स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर दीजिए। एंड शीमा,
Are you there with us? कहाँ गई? Did we just lose her? freeze हो गई शायद, I think. Ah, network issue. Mysuru के by the way, just a few days ago I was having a quick chat with her कि कैसा लग रहा है Mysuru, and she said amazing weather, and trust me Mysore का weather उसको बहुत सुहारा है, and she said I would love to stay here for long. So from Sundarban to Mysuru, well that's an amazing journey. और हम सब ने उनकी बात सुनी, तो अगर वो वापस आ जाए probably we can have a quick another few more minutes. Meanwhile आप में से कोई भी कुछ शेयर करना चाहेंगे? Some major observations from today's session, anything? गीता मैम उस टाइम पे कुछ कह रही थी. गीता मैम, did you miss something? नो, मैं ये कह रही थी कि डिस्टेंस कितना है, मतलब ये जानना चाहती थी कि सिटी का सेवा अवेलेबिलिटी अवेलेबल हो जाएगा क्या, क्योंकि बहुत सारे सिटी में, लेकिन खुद कोलकाता सिटी बहुत बुरे हाल में है, मैं जो देखकर आ रही हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, तो मेरा बहुत मन दुखी हुआ। फिर अभी उम्मीद रखती हूँ कि हमें जो नया गवर्नमेंट आया है, नया मिनिस्टर आया है, वो कुछ करेगा, क्योंकि वो देखकर मुझे गली गली में जाने का मौका मिला, क्योंकि अर्नब के घर पहुंचना था, तो वो गलियों में देखकर वेंडर्स की स्थिति देखकर, क्योंकि मुंबई से कंपेयर कर रही थी, तो सोच रही थी हे भगवान, इनकी हालत ये कैसे हो गई है ऐसे। तो मन में ऐसे विचार आया, यस, जो वहां रहता है उसने इनकी हालत की है यहाँ पर, ऐसे मतलब इनकी स्थिति नहीं सुधारी है, ऐसा मैंने मन में सोचा। तो बाकी एक दुकानदार से बातचीत हुई कोलकाता में, तो उसने भी कहा कि मैडम हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। वो मुंबई से माइग्रेटेड होके बहुत साल पहले कोलकाता में अभी टी का बिजनेस करता है, तो बोला नहीं नहीं, हम लोग बहुत बुरे उसमें फंसे हुए हैं, हमारा कोई इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है इधर सिटी में। तो मैंने कहा जरूर होगा, होली ट्रायो है इधर। Yes. Absolutely. Being from RKM, हम तो apolitical रहेंगे definitely. But अर्नब ने hand raise किया, and Shima, I think you are back, right? हाँ सर, थोड़ा ये छोटा सा मैं सौरभ अंजलि से पहले ऐड करना चाह रहा हूँ। वेस्ट बंगाल का कंडीशन इम्प्रूवमेंट अटक गया था, बट इतना बुरा भी नहीं है, बिकॉज सुंदरबन जाना आप रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट आइलैंड के शुरू तक पहुंच जाएंगी, एंड बोट्स चलती है, बोट्स आर इजी। बट हाँ, आप उत्तराखंड जाइए या नॉर्थ ईस्ट जाइए, वहां जैसे दिन में एक चल रही है बसेस, वो यहाँ पे उतना बुरा नहीं है। गलियां तो है वो, बिकॉज इट्स एन एंशिएंट सिटी, और डेवलपमेंट 10 साल 12 साल से रुक गया था, सो वो पूरा रूइंस में आ गया है, एंड वो एनक्रोचमेंट इतना कर डाला है कि पूरा वो कर दिया है। बट दैट वो जान बची हुई है, वो जो मुंबई की जान है, वेस्ट बंगाल जी रहा है, इट्स अलाइव। सो मीन्स I'm sorry to say, but it pains. नहीं, West Bengal is alive. नहीं, I will not accept this. Actually, Arnab, South 24 Parganas is absolutely close to Calcutta. It is like adjacent to Calcutta. It's very, मतलब तो बहुत ही, लोकल ट्रेन में बैठूंगा। हाँ, लेकिन कनेक्टिविटी टू सुंदरबन इज वेरी पुअर, है ना? नो, अरे जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन में आप बैठ जाओ, घंटे घंटे में ट्रेन चलती रहती है ना सीमा। अच्छा, ओके। वो अभी ट्रेन, हाँ, पूरा फट से लोकल ट्रेन है। बासुंती तक तो स्टेशन है। व्हाट इज दैट शीमा, द लास्ट एरिया? कैनिंग से बस कैनिंग, गोशाबा, बहुत जगह है उधर। तो सो जैसे लोकल ट्रेन है ना, हाफ एन आवर 1 घंटे में, लाइक दिन में भतेरे ट्रेन है मैम। यू जस्ट प्लान, जस्ट ऐसे अभी 6 बजे खत्म हो गया, इफ आई थिंक आई कैन गो, मतलब इतना इजी है। वेस्ट बंगाल की लाइफलाइन है वो रेलवे है। बट फिर वो कैनिंग से जो बोट है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग, वो दिन में ही होगा, बोट जब तक भरेगा नहीं। सो ऑल दोस थिंग्स, एंड वो सुबह ही होती है, शाम को कहाँ जंगल में कौन उतारेगा।
तो जब शीमा थोड़ी सी लॉकड आउट हो गई थी, शीमा आपके लिए कुछ फीडबैक आया था, पीपल वुड हैव लव टू हियर सम ऑफ योर पर्सनल स्टोरीज, स्पेशली कई लोगों ने बोला हाउ योर जर्नी फ्रॉम सुंदरबन टू मैसूरू केम अबाउट, और आपने बोला वहाँ पे लड़कियों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, स्पेशली उनका पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 18 और 19 मैक्स, तो आप कैसे बच गई? तो किसी ने ऐसे पूछा। And did I miss one more question? Personal question. I think somebody wanted to know about your inspiration also, something like that. तो कुछ भी अगर आपको add on करना है, please add on करिए, and let's move to a closing. अगर किसी को कुछ और feedback share करना है, please do that. यस सर, तो मेरा इंस्पिरेशन यही था कि मुझे मेरे पापा को हेल्प करना था, बस यही मेरा इंस्पिरेशन था, यही मेरा स्कूल के बाद मेरा कॉलेज चूज करने का मोटो था, यही मेरा कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से हैदराबाद और हैदराबाद से मैसूर, यही मेरा जर्नी है। तो क्या है, मेरा फैमिली शायद पता नहीं, भगवान मेरे लिए मेरा दो अनमोल रतन, मेरा मम्मी और पापा, कभी भी मेरा कोई डिसीजन में रोका नहीं है। मैंने स्कूल के बाद मैंने बस पूछी थी मुझे थोड़ा बाहर जाके पढ़ना है, ऐसा एक शारदा मिशन, रामकृष्ण शारदा मिशन है दमदम में, मुझे वहीं पे जाके पढ़ना है, गर्ल्स कॉलेज है और हॉस्टल में मैं रह सकती हूँ। तो उस टाइम मतलब थोड़ा पढ़ाई करना ये करना मैं थोड़ा पसंद करती थी शायद इसलिए, तो वही आ गई थी कॉलेज में। देन कॉलेज के थ्रू ही मेरा प्रिंसिपल अभी जो एक माता जी है उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ था, लाइक एक फैमिली की तरह। उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया मुझे ग्रो करने में, उस जो सिटी का जो लाइफ है उसके अंदर एडजस्ट होने में मुझे बहुत हेल्प किया। उन्होंने ये जो जॉब जो अभी मैं कर रही हूँ विवा के साथ, ये भी उन्होंने मुझे बोले थे कि सर ये जो स्कूल का एक मेरा एक सीनियर बैच का एक दीदी स्कूल में पढ़ते थे, तो एक ऑफिस का एक अंकल के थ्रू मुझे जानने को आया था कि ऐसा एक कॉलेज है या। तो ये जो माताजी प्रिंसिपल माताजी अभी है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किए थे, उनके थ्रू मुझे काम पे आई हूँ। एंड देन यही, और पीछे का वही एक मोटो कि किसी भी करके मेरा पापा के पास मुझे खड़ा होना है, मुझे शादी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जब तक मेरा एक मेंटली सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए बस। Okay, so Shima, what a great journey so far. Miles to go before we sleep, as they say. And with that thought, Arnab को ही बोलूँगा। Arnab, sessions are coming to an end. शत्रुपा का है कल. She just mentioned कि कल के लिए था जो भी मैसेज था उनका. So why don't you share your final comments and do the pranam mantra before we wrap up today? Can I ask Anjali and Saurabh? Sure, by all means. वैसे सौरभ सुंदरबन पहुंच भी गया, पीछे लग गया उसका। अंजलि जी। हाँ, जस्ट बस मैं यही कह रही थी कि मीन्स जैसे हम लोग सेंट्रल में हैं तो हमें इन सब चीजों का उतना आइडिया है भी नहीं, आसपास के क्षेत्र में हमने कभी इन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। तो एक नई चीज हमें एक शीमा की नजरों से, उसकी बातों से एक्सपीरियंस करने को मिले कि एक लाइफ ऐसी भी होती है। हाँ, हम पेपर्स में पढ़ते हैं, न्यूज में पढ़ते, देख लेता हाँ ये लोग कैसे रहते होंगे, लेकिन आज एक अलग विजुअलाइजेशन हुआ कि ये भी एक क्षेत्र, एक लिविंग है हमारे देश में, जो मतलब हम सेंट्रल वालों ने शायद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और ना कभी देखा। सौरभ आते हैं, प्रतीक, रवि। यहाँ एक अच्छी बात आज हमको ये भी पता चली कि किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। कभी हम सुंदरवन का नाम सुनते तो शायद हमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ही ध्यान आती, लेकिन जिस सीमा ने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया और उस एरिया से बता रही है, तो हमें उन चीजों के बारे में पता चला जो शायद हमको कभी किसी और के माध्यम से कभी पता नहीं चलती। तो थैंक यू वेरी मच इसके लिए। रवि जी। नमस्कार, सभी को धन्यवाद। सीमा मैम को स्पेशली थैंक यू मैम, आपने जो ये सुंदरवन का जो टॉपिक आपने लिया मैम, मैंने आज दिन में देखा था आज का इंटरनल ट्रेनिंग का क्या है, तो मैंने वही उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि आज ये सुंदरवन के बारे में जाना, क्योंकि मैं सुंदरवन के बारे में सुना हूँ, बट सुंदरवन क्या है, कहाँ लोकेटेड है, क्या स्पेशलिटी है,
तो ये मुझे जानने को मिला। मैम आपके जो सेशन चल रहा था तब मुझे काफी सारे मेरे मन में सवाल चल रहे थे, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि मैं थोड़ा रुकता हूँ, मुझे मेरे सवाल के जवाब मिलेंगे। सो मेरे काफी सारे सवाल थे, उसके मुझे जवाब नहीं मिले मैम। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने काफी अच्छा मैम सेशन को लेके गए कि सुंदरवन में क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या चैलेंजेस है, वो भी हमने बताया। और ये भी बताया कि मैम कब क्या क्या प्लान करके हम सुंदरवन को घूम सकते हैं अच्छी तरीके से। तो मैम हम कोशिश करेंगे मैम जरूर कि मैं एक बार सुंदरवन की यात्रा जरूर करूँ। प्लीज सर प्लीज, थैंक मुझे यू भी सो मच बहुत मैम। सारे कुछ मतलब जानने को मिला, मुझे जो अनजाना था बहुत सारा, ये जो मैनग्रोव्स है सारे वगैरह, सच्ची में मुझे नहीं पता था, मतलब पता था बहुत थोड़ा थोड़ा पता था। तो थैंक यू उसके लिए आप सभी को, थैंक यू सो मच। सौरभ जी, कभी किसी को आना है तो प्लीज मुझे से कांटेक्ट कीजिए, मैं लेकर जाऊंगी आप सबको। या थैंक यू सीमा एंड थैंक यू सीमा। या तो या गीता मैम मैं कह देता हूँ थैंक यू, तो हम कह ही रहे हैं सभी लोग। या सो सीमा की सबसे अच्छी बात यह है कि उसे मैंने स्टार्टिंग से देखा है। जब वो पहली आई थी 2024 में, तो फ्रॉम सुंदरबंस टू दिल्ली, दिल्ली से हैदराबाद, और हैदराबाद से इतने दूर आना, और उस जगह से आना जहाँ परिस्थितियां बहुत सम नहीं है, विषम है। कहीं लोग तो सिटीज में बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं ना, सुंदरबन जहाँ लाइट नहीं है, डिजास्टर है, साइक्लोन है, उसके बाद भी अपनी विल पावर को इतना मजबूत रखना और इतने आगे आना जीवन में, ये ट्रूली इंस्पिरेशनल स्टोरी है हम सभी लोगों के लिए कि ऐसे भी लोग हमारे साथ है जो इतने दूर से इतना जहाँ लोग जाने में डरते हैं, या मे बी मैं तो डरता ही था कि टाइगर से वहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कैसे लोग रहते होंगे। मेरे उत्तराखंड में भी है पर उतनी दिक्कतें नहीं है जितनी सुंदरबन में है। जितनी भी दिक्कतें हैं वो गंगा के नजदीक रहने वाले शहरों की वजह से भी है। तो थैंक यू सीमा, एंड वी रियली इंस्पायर फ्रॉम योर स्टोरी, फ्रॉम यू आर कमिंग फ्रॉम सुंदरबन, एंड इतने दूर आना। अभी यात्रा लंबी है जैसे तपन सर ने बोला, माइल्स टू गो बिफोर स्लीप, ऐसा कुछ है, एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कोई कविता है। तो थैंक यू कि इतना कुछ इंसाइट्स आप दे पाए हमें सुंदरबन के बारे में। थैंक यू सर। अभी भी तो जर्नी खत्म नहीं हुआ, आप सभी को आशीर्वाद चाहिए होगा और भी जाना है। अभी तो बस आई थिंक 1% ऐसा कुछ हुआ है शायद, तो आप सभी का आशीर्वाद होगा तो और भी कर पाएंगे। और स्पेशली मैं सच्चे दिल से बोल रही हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ सुंदरबन के लिए, पता नहीं मैं कितना कर पाऊंगी लेकिन कोशिश तो एक जारी काम करो रहेगी। सीमा, एक काम करो, हम सबके तरफ से माँ को प्रणाम कर लो। मे माता ब्लेस अस ऑल। एक क्लोजिंग थॉट मैं अपने एंड से शेयर कर देता हूँ, बीइंग द मॉडरेटर फॉर टुडे। सॉरी फॉर गॉड, हाँ, क्योंकि आज अवेकनिंग की ट्रेनिंग थी, आई ऑलमोस्ट मिस। इंसान चाहे तो राजस्थान के रेगिस्तान में भी बिल्कुल वन खिला दे, और जो सुंदरबन बना बनाया है उसको भी उजाड़ दे। दैट्स द पावर दैट ह्यूमंस हैव। लेट्स ऑल हमारे इंसान की जो पावर है उसको जगाए और यूज इट फॉर द बेस्ट ऑफ द यूज। तो शिमा, लेट्स प्रे टू माँ। one small thing before Yes, please. I did have a thought, Shima, with your enthusiasm and the improved English, can you write an article on what you said? Because this documentation will, this documentation, एक 5-6 pager, this journey from Sundarban, how your parents supported you. But it was not just parents, it was you जिसको पेरेंट्स ने सुना, उसको अगर आप डॉक्यूमेंट करती हो, इट्स अ रियल लाइफ पावरफुल। And how you came out to a college, stayed in a hostel. हम भी हॉस्टल में रहने से डरते हैं, I mean, but these things you faced. So if you can write, I mean, this is a thought I just wanted to share. Yes sir, I'd love to do that. Yes sir. And Viva is a platform. We have our website, we have our blog, website में blog है, so many things we can do. So दिलीप है, फिर रवि जी KGBV का है, ऐसे हम ना कुछ ब्लॉग्स में परमानेंट आर्टिकल्स शीमा रख सकते हैं। आप अगर उसमें 500 वर्ड्स करके हम एक सीरीज भी निकाल सकते हैं शीमा। If you have like that also we can plan. If you begin, maybe people will follow. Okay sir, Yes. I will do that. Okay. ठीक है, thank you.
Shiva, please do the honors. Pranam. Om Jananing Sharadam Deving Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayo Sritva Pranamami Muhurmuhu. Om Shanti Shanti Shanti. Sri Ramakrishna Arpanamastu. Thank you. Thank you. Thank you.